Namaskar friends, welcome to SGKG Studies and SGKG 2.22 YouTube channel classes, and in the series of Right to Information Act. In this session we are going to discuss about RTI disposal of request. So application has been received and it needs to be disposed of within the stipulated time frame, that we are going to discuss here. जो भी RTI एप्लीकेशन रिसीव हुआ है उसको एक प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट में उसको या तो रिप्लाई करना है, नहीं तो रिजेक्ट करना है, उसको कुछ ना कुछ सॉल्यूशन करना है, उसी को डिस्पोजल कहते हैं। उसको ले करके और रखे नहीं से रख सकते। आइए देखते हैं। सो एप्लीकेशन रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन मस्ट बी डिस्पोज्ड ऑफ बाय पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर फुली, पार्शियली और रिजेक्टिंग विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम पीरियड। आपको जो करना है रूल के अनुसार, रूल अलाउ करता है फुली डिस्क्लोज कीजिए, इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए। रूल सजेस्ट करता है पार्शियली डिस्क्लोज कीजिए। रूल अलाउ नहीं करता है रिजेक्ट कर दीजिए, बट इट शुड बी डन विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम पीरियड। सो दैट प्रिस्क्राइब्ड टाइम पीरियड इज मेंशन्ड। That prescribed time period is mentioned in several sections, section 5, section 6, section 7, 11, 19, 24, like this. It is scattered for the sake of our convenience, for the sake of our understanding. Here it is consolidated. Here it is consolidated. So concerns the life or liberty of a person. If the application relates to life or liberty, then under proviso section 7(1) 48 hours. Other than life and liberty, 30 days. Application received by PIO through APIO, another 5 days, that is 35 days. Application seeking third party information where notice is issued, another 10 days, that is 40 days. Relating to human right violation from second schedule notified organization, 45 days. Filing of first appeal within 30 days. Disposal of first appeal ordinarily 30 days, extendable to 45 days for reasons to be recorded. Filing of second appeal with CIC, 90 days. Transfer of application to other public authority, 5 days. So this list is exhaustive. It is compiled here for the convenience of the all public information officers. So generally, if the application is connected with life and liberty, then it should be disposed of within 48 hours. In general, application to be disposed of within 30 days. If the application has been received by APIO, who is not supposed to disclose the information, then 5 days extra time is given to APIO so that the application can reach to the PIO. For that purpose, 30 days plus 5 days, 35 days. एप्लीकेशन सीकिंग थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन, अगर किसी थर्ड पार्टी से इन्फॉर्मेशन लेना है तो उसको पहले नोटिस दिया जाता है एंड देन इशू किया जाता है, इसलिए इट टेक्स 10 डेज एक्स्ट्रा एंड 30 डेज प्लस 10 डेज 40 डेज। अगर ह्यूमन राइट वायलेशन से रिलेटेड है 45 डेज। फर्स्ट अपील कब फाइल करना है? फर्स्ट अपील नीड्स टू बी फाइल विद इन 30 डेज एंड disposal of first appeal should also be done ordinarily in 45 days, but the disposal is extendable up to 45 days for reasons to be recorded. So first appeal 30 days के अंदर करना है और फर्स्ट अपील को का रिप्लाई जो है वो भी 30 डेज के अंदर करना है, बट दिस 30 डेज इज एक्सटेंडेबल अप टू 45 डेज। सेकेंड अपील के लिए 90 डेज का टाइम मिलता है। सेकेंड अपील में अगर जाना है तो विद इन 90 डेज एप्लीकेशन कैन बी फाइल्ड, और ये कितने दिन में इसका रिड्रेसल होगा ये मेंशन नहीं किया हुआ है। ट्रांसफ़र फॉर एप्लीकेशन
ट्रांसफ़र ऑफ एप्लीकेशन टू अदर पब्लिक अथॉरिटी, अगर किसी दूसरे डिपार्टमेंट का है, किसी और के पास इसका इंफॉर्मेशन है, किसी और के पास ट्रांसफ़र करना है, इन दैट सिचुएशन plus 5 days is added. So this is transfer of application. If that application reaches to me and if I think that the disposal should be some other authority, then maximum 5 days is available with me to send it, right. So this is the time limit. One must follow this time limit. Time limit following is very much important as far as RTI application is concerned. Then tips for PIO and APIO. Meet requesters with politeness. जो भी एप्लीकेशन देने आ रहा है उससे बड़े प्यार से बात करना है, झगड़ा झंझट नहीं करना है. गाइड रिक्वेस्टर्स वेदर इंफॉर्मेशन कैन बी ऑलरेडी फाउंड, अगर इंफॉर्मेशन ऑलरेडी है उसको गाइड करना है. असिस्ट पीपल टू मेक देयर रिक्वेस्ट इन प्रॉपर मैनर, उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि जो प्रॉपर मैनर है इस तरीके से आप अप्लाई करें. डू नॉट आस्क द रिक्वेस्टर द पर्पस फॉर इज हर रिक्वेस्ट. पर्पस तो जानना ही नहीं है, किस रीजन से, किस पर्पस से कोई अप्लाई कर रहा है, कोई इंफॉर्मेशन ले रहा है, वो नहीं पूछना है. एप्लीकेशन में नहीं चाहिए और इसलिए हमें नहीं पूछना है. अगर पूछते हैं तो इट इज़ वायलेशन ऑफ द रूल. प्रोवाइड रिक्वेस्टर्स विद रिसिप्ट आफ्टर देयर रिक्वेस्ट्स आर सबमिटेड. अगर उनका हमने एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लिया तो उनको एक एक्नॉलेजमेंट या रिसीट हमें देना है. प्रोवाइड रिक्वेस्टर विद एडवाइस ऑन द प्रोसेस. जो भी प्रोसेस है उस प्रोसेस को हमें उस जो इंफॉर्मेशन सीकर है उनको हमें प्रोसेस बताना है कि साहब आपने एप्लीकेशन जमा कर दिया, इसको हम भेजेंगे अपने PIO को और उसके बाद से वो इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करेंगे. अगर आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है और आपको फिर भी इंफॉर्मेशन चाहिए, चाहे एग्रीव्ड फील हो रहे हैं, तो यू कैन गो फॉर फर्स्ट अपील ऑल्सो, यू कैन गो फॉर सेकेंड अपील ऑल्सो, राइट. अब आइए कुछ नया चीज़ देखते हैं. The citizen can file application for getting information along with fee to the PIO and shall ensure that request is delivered to the concerned office as early as possible. Whether further fee is required, say for photocopy, so क्या करना है, citizen जो है अपना application concerned office के पास deliver करेगा. ठीक है, कंसर्न ऑफिस ये चेक करेगी कि उसको एडिशनल फ़ी की ज़रूरत है क्या. दैट सिटीजन कैन सीक इंस्पेक्शन ऑफ द वर्क, डॉक्यूमेंट, रिकॉर्ड्स, टेक एक्सट्रैक्ट एंड सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट और सैंपल ऑफ मटेरियल्स. ये सिटीजन का पावर है, राइट है उसका. ऑन रिसिप्ट ऑफ द रिक्वेस्ट इन कंसर्न्ड डिपार्टमेंट इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द ऑफिशियल इंचार्ज ऑफ द section, divisional head of that department, that the request is properly examined by nominated official and entered in the register. So क्या करना है, RTI का एक एप्लीकेशन और एक रजिस्टर भी रखना है. जितने एप्लीकेशन आते हैं उन सबको उस रजिस्टर में एंट्री करनी है सीरियल नंबर से, सो दैट उसको मोनीटर किया जा सके कि किस डेट में आया था, अभी कहाँ पे है और कितने दिन में उसको रिप्लाई करना है. मोनीटर करने के लिए रजिस्टर मेंटेन करना necessary है. In case the inspection of document has been asked for, it shall be the duty of the officio person in charge of the section that the document or record or file is sent to PIO with the information within 7 days so that PIO may intimate applicant to inspect. अगर document inspection के लिए application दिया हुआ है तो जो concerned department है वो उस फाइल को, जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है जिस फाइल में, उस फाइल को PIO के पास 7 डेज के भीतर भेज देंगे. सो दैट PIO क्या करेंगे, उस अप्लीकेंट को इंटीमेट करेंगे कि आप आ जाइए और आकर के अपना इन्फॉर्मेशन देख लीजिए, अपना जो भी रिकॉर्ड है उसको वेरीफाई कर लीजिए, इंस्पेक्ट कर लीजिए. PIO shall intimate the applicant to come and inspect the document available in his office within a week. The applicant shall be provided the information free of charge if the commission fails to provide information within 30 days. Most important from MCQ point of view, from examination point of view. 30 days के भीतर हमें information शेयर करना है, प्रोवाइड करना है. अगर हम 30 डेज के भीतर इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर पाए तो वो चाहे 1 रिम के बराबर क्यों नहीं मांग रहे हो, अगर 30 डेज के भीतर अगर हम सप्लाई नहीं कर पाए तो 30 डेज के बाद दैट इंफॉर्मेशन विल बी प्रोवाइडेड फ्री ऑफ चार्ज.
If the interest of the third party is involved, then the time limit is 40 days. अगर इसमें थर्ड पार्टी आ जाती है, किसी थर्ड पार्टी से इंफॉर्मेशन लेकर के, चाहे उससे परमिशन लेकर के हमें इंफॉर्मेशन भेजना है, तो उसमें 5 दिन हमारे तरफ से और 5 दिन उनके रिप्लाई के लिए 10 डेज का टाइम एक्स्ट्रा ऐड करते हैं. सो 30 डेज के बाद से ये 40 डेज हो जाता है. द इंफॉर्मेशन इज टू बी सप्लाइड in a time bound manner, failing which the applicant can file appeal before the appellate authority. In case the information is supplied after 30 days, no further fee will be collected. So information जो है generally 30 days में provide कर देना है. अगर किसी कारण से देर हो जाती है तो applicant अगर चाहे तो appellate authority के पास जा सकता है, और अगर देर हो गई है तो बाकी जो इंफॉर्मेशन है वो बिना किसी एडिशनल चार्ज के सप्लाई करना है. इन केस ऑफ थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन, द PIO shall issue notice to third party and give him opportunity of hearing if required and 10 days time to present. The PIO shall take into consideration the representation while taking decision on the request of merit. So अगर थर्ड पार्टी का इंफॉर्मेशन है, इन केस थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन, अगर थर्ड पार्टी का इंफॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल है तो मुझे उस थर्ड पार्टी का व्यू भी लेना है, और इसके लिए एडिशनल 10 डेज ऐड किया गया है. और उस थर्ड पार्टी का जो भी वो रिप्रेजेंट करेंगे, जो भी उनका रिप्रेजेंटेशन है, उसको ध्यान में रखना है और इस अकॉर्डिंगली हमें उस एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ करना है. इन केस where the request is rejected or refused by the PIO, the particulars of the appellate authority to whom appeal can be referred shall be mentioned with time limit of the appeal. अगर इंफॉर्मेशन को, अगर रिक्वेस्ट को, अगर एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है, इंफॉर्मेशन रिफ्यूज़ कर दिया जाता है, इन दैट कंडीशन जो हम रिप्लाई देंगे एप्लीकेंट को, उसमें अपीलेट अथॉरिटी का पूरा डिटेल, उसका एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर, ये सब भी मेंशन करना है, और ये भी बताना है कि आप इतने दिन में, इतने 30 डेज़ में आप अपील कर सकते हैं इस अपीलेट अथॉरिटी के पास. ये सब भी हमें उस सिटीजन को बताना है. कुछ MCQ हैं, थोड़ा उनको देख लेते हैं. विच अमॉन्ग द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ PIO. PIO का फंक्शन क्या है? सेंड द इंफॉर्मेशन टू CPIO, हैंडल इंफॉर्मेशन. CPIO और PIO एक ही होता है, इसलिए सेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है. हैंडल इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट एंड प्रोवाइड रीजनेबल असिस्टेंस, ठीक है, ये हो सकता है. एक्सेप्ट एप्लीकेशन एंड अपील, ये तो APIO का काम लग रहा है. सीक असिस्टेंस अंडर सेक्शन 5(3) एंड 5(4), हाँ ये हो सकता है. सो कहने का मतलब कि यहाँ पर B भी सही है और D भी सही है, यहाँ पर B और D दोनों सही है. सो PIOs आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट, प्रोवाइडिंग रीजनेबल असिस्टेंस टू द इंफॉर्मेशन सीकर एंड seeking assistance under section 5(3) and 5(4) of the RTA Act for proper discharge of duties. Next question. Which of the following are good guidelines that a PIO or APIO should follow when providing information to a requester? Ask the requester the purpose for his or her request. बिल्कुल नहीं करना है, रॉन्ग हो जाएगा, ये गलत है. Meet the requester with politeness, हाँ ठीक है. Do not give any extra advice to the requester. इसका कुछ रिलेवेंस समझ में नहीं आता. Assist people to make their request in proper manner, ये भी ठीक है. सो इस तरीके से B और D दो ठीक है. A good PIO or APIO must meet the requester with politeness, assist people to make their request in proper manner. सो ये दोनों करेक्ट है. नेक्स्ट, assume a CPIO receives an information request, who will he or she forward it to? अगर CPIO एप्लीकेशन रिसीव करते हैं तो किसके पास भेजेंगे? PIO के पास, DPIO के पास, पब्लिक अथॉरिटी के पास, और नन ऑफ दिस. अरे CPIO कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है इस एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ करने के लिए, इसलिए उसको किसी के पास भेज ओके. सो इस किसी के पास भेजने की ज़रूरत नॉर्मली नहीं पड़ती है जब डिस्ट्रिक्ट में है.
तो और जो CPIO क्या करेगा, एप्लीकेशन रिसीव करेगा, और जो डिस्ट्रिक्ट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, अगर डेजिग्नेशन है, सेंट्रल में कहीं नहीं है, सेंट्रल में अगर CPIO रिसीव करता है तो वो उसको डिस्पोज ऑफ करेगा। लेकिन अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई DPIO है तो ये उस एप्लीकेशन को DPIO को भेज देंगे, नहीं तो CPIO कंपिटेंट अथॉरिटी है, वो खुद ही डिस्पोज ऑफ करेगा, उसको किसी के पास भेजने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में DPIO है, इसलिए DPIO इज़ द करेक्ट आंसर। When a CPIO receives request for information, he or she will forward it to DPIO. Next question. Assume an applicant request information from the CPIO. Which of the following will happen after the application request is received? Assume an application request information from the CPIO. Assume an applicant request information from CPIO. ठीक है, CPIO के पास application आ गया. Which of the following information following will happen after the application request is received? So इसको सीक्वेंस में अरेंज द स्टेप्स लिस्टेड बिलो इन द करेक्ट ऑर्डर में करना है। CPIO विल प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन फुली और पार्सली टू द एप्लीकेंट, ये तो बाद की बात हो गई। इंफॉर्मेशन विल बी रिट्रीव्ड विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन इज फर्स्ट रिसीव्ड इन द ऑफिस। CPIO विल लुक फॉर रिकॉर्ड्स और कस्टोडियन। यस, ये पहला लग रहा है। अगर एप्लीकेशन रिसीव हो गया तो CPIO विल लुक फॉर रिकॉर्ड्स और कस्टोडियन। देन इंफॉर्मेशन विल बी रिट्रीव्ड विद इन 30 days, ये भी सही लग रहा है। इसके बाद देन CPIO विल प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन फुली, ठीक है। देन कॉस्ट एस्टिमेट विल बी गिवन टू द एप्लीकेंट इन केस ऑफ सम एडिशनल इंफॉर्मेशन, सही बात है। Once the information is received, PIO will check whether it falls under any of the exemption or not. So correct होगा 32514. So पहले 3, फिर 2, फिर 5, फिर 1 और फिर 4. So this is a 32514, right? So in this way we learnt very important topics on the RTI. Please do like, subscribe and share your own YouTube channel SGKG Studies and SGKG 2.22 YouTube channel classes. We meet in the next class with the new information. Till then, if you are not subscribed, please do subscribe. Please like, comment and press bell icon on. We meet in the next class. Till then, namaskar.